Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine at home and your family members are also. So we stay safe and stay healthy. So we are doing the revisions. We have successfully done the revisions of the if we talk about chapter 1, variation in psychological attribute, chapter 2, self and personality, chapter 3, meeting life challenges, and chapter 4, psychological disorder, and chapter 5, psychotherapeutic, or we can say that therapeutic approaches. So we have successfully done the revisions of all the 5 chapters. Still, if you feel any of the doubt regarding any of the topic, you can ask in the classroom. Please, students, clear your doubts, learn more and more. Do the revision test, whatever the revision test you are giving, give your best, give your 100% in that revision test. As you are scoring very much less marks, so I just suggest you to give your best in your revision test. We had done 3 revision tests, and the revision test 4 is going to be of your chapter 6, chapter 5, and last chapter revision test 5 is of chapter 6 and 7. So as the syllabus are all with you, study hard and prepare yourself well. Now coming to the chapter 6 which we are studying here, the attitude and social coordination. This is also a children very interesting chapter. ये भी बहुत ही interesting chapter है. Here we have studied about attitude, what are the components of attitude, what are the features of attitude. We studied about how the attitude formation take place, how the attitude change. Here we had studied that attitude formation, there are some processes and there are some factors which influence in forming an attitude. Similarly, there are some processes of attitude change also, or I can say that some of the theories are there in the attitude change. The theories, I just want you to recall it. The theories are the balance theory, which is given by Fritz Heider, then cognitive dissonance theory, which is given by Leon Festinger, then the two-step concept theory, which is given by S.M. Mosley. So please children, go through all the theories as they are very important. Now, the secondly, you also have studied what are the factors which influence the attitude change. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज. सो यू हैव लर्न दैट सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, target characteristics, as well as the characteristics of an existing attitude itself is responsible for changing the attitude of a person. Like for example, if any person has a simple attitude, it is very easy to change in comparison to the complex attitude. If any person has a extreme attitude, it is difficult to change than the person has the central attitude. Similarly, these things we have studied. The last topic which we have studied is the attitude-behavior relationship. What is the relationship of attitude with the behavior? In that we had studied that we form an attitude but we doesn't bring it into our behavior. हम लोग attitude तो form कर देते हैं but हम उसे अपने behavior में नहीं ला पाते. So this is the relationship between attitude and behavior. There is a very close relationship between both of them. Now the next point is after the attitude behavior relationship, the next point is we have studied about the prejudice. Prejudice we have studied, it is a negative component. It is a negative component and toward any person, toward any object, toward anything. So we have also studied some of the terms like stereotype and prototype. Stereotype is a cluster of ideas which we hold toward any object, any person, anything. Means अगर हम लोग बहुत सारे ideas किसी चीज़ को लेके रखते हैं तो वो stereotype होता है.
बट अगर किसी ऑब्जेक्ट लाइक इट मीन्स क्लस्टर ऑफ आइडिया, इफ यू होल्ड अबाउट एनी ऑब्जेक्ट देन इट इज प्रोटोटाइप. But the cluster of ideas, if you hold about any person, then it is stereotype. So these two terms we had discussed, stereotype and prototype. Then also we have discussed about prejudice. Now we have studied that prejudice is a cognitive component of an attitude, where discrimination is a behavioral component of an attitude. Children, I just, before starting a new topic, I am giving you a quick review of this chapter, that earlier what are the things you have studied in. Because revisions are very important. The more and more you revise the thing, the more you will be very much like experienced and very much master in that particular topic. Now, so we have studied that because of the prejudice, the people will discriminate. प्रेजुडाइज की वजह से लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को अलग करते हैं. ओके, सो इट इज़ अ बिहेवियरल कॉम्पोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड. सो दीज आर द थिंग. वी ऑल्सो स्टडीड हाउ द प्रेजुडिस आर, व्हाट आर द सोर्सेज. प्रेजुडिस कहाँ से आता है, कैसे आता है, और किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू हैंडल द प्रेजुडिस, ये भी हमने जाना. कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम लोग प्रेजुडाइज को हैंडल कर सकते हैं. नाउ आज हमारा एक टॉपिक, न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है इम्प्रेशन फॉर्मेशन. आई थिंक ये वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा. दिस इज योर टॉपिक. इम्प्रेशन फॉर्मेशन. आई थिंक ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा. इम्प्रेशन फॉर्मेशन मीन्स जब हम लोग किसी के टुवर्ड एक इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये फ्रेज आपने बहुत बार सुना होगा कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. एंड यस चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी ट्रू दैट जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है. समटाइम्स, बट समटाइम इसका डिनाई भी हुआ है. समटाइम द लास्ट इम्प्रेशन बिकम द वेरी इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन. सो द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द लास्ट इम्प्रेशन, ये फ्रेज आपने कई बार सुना होगा. इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड इम्प्रेशन क्या होता है? एक छाप पड़ना. इम्प्रेशन जो आप करते हो, स्टैम्प से भी इम्प्रेशन करते हो, एक छाप पड़ना. तो वो कैसे फॉर्म होता है, इम्प्रेशन कैसे फॉर्म होता है? ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टर्म. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म भी कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन. इम्प्रेशन फॉर्मेशन मीन्स ड्रॉइंग इन इन्फ्रेंस. बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं? इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं. इम्प्रेशन फॉर्मेशन मीन्स ड्रॉइंग इन इन्फ्रेंस व्हेन यू सी द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे आप पहली बार किसी से मिलते हैं एंड यू मेक अ कंक्लूजन अबाउट दैट पर्सन, यू मेक अ इन्फ्रेंस अबाउट दैट पर्सन, यू आर डूइंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन. एंड वो इम्प्रेशन इज गवर्न्ड बाय several factors which we are going to discuss here. So first of all, this should be very clear to you all that what is impression formation. Impression formation means when you form inference about a person as you meet with that particular person. जैसे ही आप उस पर्सन से मिलते हैं और मिलते ही अगर आप उसके बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो यू आर डूइंग एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं कि वो ऐसा है, तो यू आर डूइंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ होता है. Just like students, when a new teacher entered in the classroom and the student doesn't know him or her, so immediately at the first class, the student make an impression about that teacher. Student जो है उस टीचर के बारे में एक इम्प्रेशन बनाता है. क्या इम्प्रेशन बनाता है? कुछ भी बना सकता है. Some student need that teacher is very strict. कुछ स्टूडेंट ये सोच सकता है टीचर इज़ वेरी गुड. So every student make an impression formation.
कहने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट अगर बैठे हैं क्लासरूम में, हर कोई एक इम्प्रेशन, एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेगा उस पर्टिकुलर टीचर के सामने जो उनके सामने खड़ा है। ओके, तो वॉट एवर द बिहेवियर ऑफ द टीचर, अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट विल फॉर्म एन इम्प्रेशन। सो दिस इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इसमें 3 प्रोसेसेस आते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, फिर सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड होता है इन्फ्लुएंस। The 3 processes come in this one is selection, organization और third one is influence। ये आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। What are the processes of impression formation? Selection, organization, influence। सबसे पहले हम लोग किसी भी बिहेवियर को, जिसको भी किसी भी बिहेवियर या किसी भी स्टिमुलाई या किसी भी पर्सन को हम या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हो, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपके पास हो या किसी और से, लाइक अगर टीचर में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन करना, देन इज द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन, देन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज द इन्फ्लुएंस। सो चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आती हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्लुएंस। पहले हम किसी भी बिहेवियर को, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी पर्सन सेलेक्ट करते हैं जिसके टूवर्ड हमें इम्प्रेशन फॉर्म करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको फिर हम एक ऑर्गेनाइज में बनाते हैं और फिर हम अब उसके बारे में इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि वो पर्सन ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर भी है क्लासरूम में, फर्स्ट टाइम आता है, तो वो जो भी चीज़ें पहले तो हम लोग सेलेक्ट करिए कि हमें इस टीचर को लेके इम्प्रेशन फॉर्म करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक टीचर ने कैसे रिएक्ट किया, टीचर ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, टीचर ने क्या बिहेवियर किया, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। फिर एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि टीचर ऐसा है, टीचर इज़ स्ट्रिक्ट, टीचर इज़ वेरी हम्बल और वॉट एवर इट इज़। तो हम लोग एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। तो ये 3 प्रोसेस में इम्प्रेशन फॉर्मेशन होता है। सिलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और इन्फ्लुएंस होता है। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। सी, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो सब कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है। इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकली। जब भी आप किसी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिले या कभी भी मिले, ऑलवेज यू ड्रॉ एन इन्फ्लुएंस अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ ज़रूर करते हैं। तो दैट इज़ एन इम्प्रेशन फॉर्म। आपने उसके बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म किया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक दिस वन। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस। आफ्टर द प्रोसेस, सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इम्प्रेशन फॉर्मेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? प्राइमेसी इफेक्ट, recency effect. Are you able to see everyone? Okay, primacy effect, recency effect, halo effect. ये 2 तरीके के इफेक्ट दिखते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन में। ये 2 तरीके के इफेक्ट दिखते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन में। पहला, प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी मीन्स जैसा ही फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप कह सकते हो जैसा आप, मतलब पर्सन ने जैसा बिहेव किया उसी पे आपने उसके बारे में एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया। रिसेंसी, आप उसके लास्ट तक क्वालिटीज़ को देखते हो, फिर एक इम्प्रेशन फॉर्म करते हो। हेलो, आपने उसका कोई एक फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेट ले लिया और उसी को लेके आपने एक पूरा इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक। आपने उस पर्सन की कोई एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक या कोई एक अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक लेके उसी को आपने पूरी तरह से उसकी पर्सनालिटी के बारे में इम्प्रेशन फॉर्म कर लिया।
तो that is halo effect. So this is all about the impression formation, and children, mean it, we are all doing this one. ठीक है, हम लोग प्राइमेसी इफेक्ट्स भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, रिसेंसी इफेक्ट भी करती है और हेलो इफेक्ट भी करती है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी, दैट इज impression formation. Now coming to the next part which we have to study is the attribution. Let's discuss about the next topic which is the attribution. Okay, attribution. Attribution is also one of the psychological factor. It is also one of the psychological factor. Attribution means attributing their own trait to other. That is a different thing. One second. Basically, attribution means assigning causes to a particular behavior. That is known as attribution. जब किसी भी particular behavior के लिए आप एक cause assign करते हो, so that is known as attribution. Assigning cause to a particular behavior. Okay, like for example, if a teacher entered in the classroom and every student say good morning, but teacher doesn't respond. So maybe children just make an attribution कि लग रहा है आज तो या तो मूड खराब है मैम का, या फिर लाइक एनीवे मैम बहुत रूड है, रेस्पॉन्ड नहीं करती, हम लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो एनीथिंग द पर्सन डू, एनीथिंग द चिल्ड्रन विल डू, वो एक इम्प्रेशन भी फॉर्म करेंगे उसके साथ साथ, अरे ये पर्सन तो बहुत ही रूड है, ठीक है. और दूसरा ये भी एक्टिव एट्रीब्यूशन भी करेंगे कि देखो कैसे कर रहा है. यानी द एट्रीब्यूशन में असाइनिंग अ कॉज टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर. कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके लिए रीज़न असाइन जब आप करते हैं तो दैट इज नोन एज एट्रीब्यूशन. एंड मेनी टाइम चिल्ड्रन वी डू द एट्रीब्यूशन. कुछ भी होता है हम लोग एक रीज़न असाइन उसको ज़रूर करते हैं, ये अगर इस वजह से ये ऐसा है तो इस वजह से होगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू द एट्रीब्यूशन. We attribute, we assign causes to a particular behavior which are happening most of the time. So attribution means assigning cause to a particular behavior of a person. Now in attribution you have to study about, like, attribution is also governed by some of the factors. There are some factors which influence the attribution. There are some factors which are influencing the attribution. What are the factors? External factor, internal factor, stable factor, unstable. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं. ये 4 फैक्टर्स एक दूसरे से बहुत ही कोरिलेटेड हैं. इंटरनल फैक्टर्स आपके खुद के हार्ड वर्क और योर ओन इंटरेस्ट, ऑल फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर लाइक आप लक को देते हो, ठीक है, तो ये आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कर रहे हो. इंटरनल एट्रीब्यूशन जब आप अपने हार्ड वर्क को एट्रीब्यूशन देते हो किसी भी चीज़ के लिए तो इंटरनल फैक्टर है. स्टेबल फैक्टर वो फैक्टर जो स्टेबल हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होते, जैसे वर्क नहीं चेंज हो सकता. अनस्टेबल फैक्टर जैसे कि टाइम स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता रहता है. सो ऑल दिस फैक्टर टुगेदर डिटरमाइन द एट्रीब्यूशन. इंटरनल एट्रीब्यूशन यानी बेसिकली हम लोग एट्रीब्यूशन इंटरनली भी करते हैं बेटा और एक्सटर्नली भी करते हैं. इंटरनल एट्रीब्यूशन व्हेन वी असाइन कॉज टू आवर ओन बिहेवियर, टू आवर ओन इंटरनल बिहेवियर.
लाइक अगर किसी भी चीज़ के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं तो हम लोग इंटरनल एजुकेशन करते हैं, बट किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है उसके लिए हम अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं तो वी आर डूइंग एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। और ये देखा गया है मैक्सिमम पीपल ऑलवेज डू द एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, इंटरनल एट्रीब्यूशन बहुत कम लोग करते हैं। एक कंसेप्ट है आपकी बुक में दिया हुआ है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसका मतलब होता है जब हम लोग एट्रीब्यूशन इंटरनली करते हैं तो दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब हम लोग कोई भी चीज़ इंटरनली कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। I hope this will be keep in your mind, this will be in your mind always, that whenever we do the attribution internally, then it is known as fundamental attribution error. Now, the one thing which come under this topic is attribution is actor and observer effect. So let us study about the actor and observer effect. Actor and observer effect of attribution. एक्टर एंड ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे टू टर्म्स आते हैं, एक होता है एक्टर रोल और दूसरा होता है ऑब्जर्वर रोल। एक बार हम लोग एक्टर रोल में होते हैं, एक बार हम लोग ऑब्जर्वर रोल में होते हैं। ये हम ही हैं जो इन टू रोल्स को प्ले करते हैं, हम ही हैं जो एक्टर रोल में भी होते हैं, हम ही हैं जो ऑब्जर्वर रोल में भी होते हैं। पर हमारा जो एट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाता है जब हम लोग एक्टर रोल में होते हैं और जब हम लोग ऑब्जर्वर रोल में होते हैं। हमारा एट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है, हमारा चीज़ों को असाइन करना, कॉजेज असाइन करना बहुत डिफरेंट हो जाता है। कैसे? जब हम लोग एक्टर रोल में होते हैं तो हम लोग मैक्सिमम एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल को देते हैं और इंटरनल को कम देते हैं। और जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑब्जर्वर में। जब हम लोग ऑब्जर्वर रोल में होते हैं तो हम अपना जो एट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल को ज़्यादा देते हैं और फिर इंटरनल को कम देते हैं। ठीक है, सॉरी, इंटरनल को ज़्यादा देते हैं और एक्सटर्नल को कम देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर अगेन नाउ, बट आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ एक्टर रोल, ऑब्जर्वर रोल means it is all in just taking example of the attribution of success and failure. सक्सेस एंड फेलियर का अगर एट्रीब्यूशन लेके चलना है तो जब हम लोग एक्टर रोल में होंगे, व्हेन वी आर इन द रोल ऑफ एक्टर, सो हम अपने सक्सेस का एट्रीब्यूशन इंटरनल फैक्टर को देंगे और अपने अगर फेल होंगे तो उसका एट्रीब्यूशन हम एक्सटर्नल को देंगे। आई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग एट्रीब्यूशन कर रहे हैं सक्सेस और फेलियर का। अगर हम एक्टर रोल में हैं तो हम अगर सक्सेस होते हैं, हम अगर पास होते हैं तो हम उसका एट्रीब्यूशन किसको देंगे? इंटरनल को देंगे। इंटरनल मीन्स हम सोचेंगे मैं पास हुआ हूँ तो मैं अपने हार्ड वर्क से हुआ हूँ, मैं अपनी मेहनत से हुआ हूँ। वहीं अगर हम फेल होंगे तो हम लोग का एट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग उसका एट्रीब्यूशन कैसे देंगे? एक्सटर्नल को। हम कहेंगे पेपर टफ था, लक नहीं अच्छा था मेरा, इसलिए मैं पास हो गई। तो कैसे हम लोग सक्सेस और फेलियर का एट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब वही हम ऑब्जर्वर रोल में, यानी हम किसी और को देख रहे हैं, हमारा परसेप्शन अब हमारे लिए नहीं, हमारा एट्रीब्यूशन अब हमारे लिए नहीं, हमारा एट्रीब्यूशन दूसरे के लिए। अब हम ऑब्जर्वर रोल में हैं तो हम उनकी सक्सेस का एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल को देंगे। हम कहेंगे अरे वो पास हुआ है तो ज़रूर पेपर बहुत अच्छा आया होगा या फिर उसकी लक बहुत अच्छी। और वहीं अगर वो फेल होगा तो उसका एट्रीब्यूशन हमारा इंटरनल हो जाएगा कि अरे उसने मेहनत नहीं की होगी तभी वो फेल हुआ है।
to see the children how the attributions are changing, and this is known as actor and observer effect of attribution. एक्टर रोल में होते हैं तो एट्रीब्यूशन बहुत ही डिफरेंट होता है, ऑब्जर्वर रोल में होते हैं तो एट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट होता है. So this is the emphasize, this is the importance which play an important role. So I hope children, today we have studied about the two topics, impression formation and attribution. I just consider that you understood this topic in a very proper manner. Okay. Now, there are some terms which are related to these things are like which we studied, but I just want you to make it clear these topics. So, impression formation and attribution. So, always आप ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने सक्सेस के लिए एट्रीब्यूशन चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, कभी भी एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए आपका. हमेशा एट्रीब्यूशन आपका इंटरनल होना चाहिए, चाहे वो एक्टर रोल में आप हो और चाहे वो ऑब्जर्वर रोल में. एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए. मैक्सिमम एम्फेसाइज आपका इंटरनल में होना चाहिए. तभी आप सक्सीड करते हैं, तभी आप कुछ अचीव करते हैं लाइफ में. So always should be your focus should be on your internal attribution. Now moving toward the next topic. So children, after studying this topic, impression formation, attribution, some topics which are related to your this chapter is conformity, compliance, obedience. I hope this is visible to you all. Okay. Conformity, compliance and obedience. These are also some of the parts which you have to study. Some of the topic. This is a new topic you can understood. Very much discussion we will not do here. In the next video, maybe we will do a discussion of in detail. Let me tell you what are these concepts are. Conformity, compliance and obedience. Conformity is a type of social influence. These are type of social influence. ये सारे social influence के type हैं. Obedience means when you respect the higher authority person, when you follow the orders of the higher authority person, that is known as obedience. And compliance means if a request is made by someone and you comply with it. आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा बच्चों, कंप्लाई करना. कंप्लाई मतलब कि किसी ने कुछ आपसे रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कॉम्प्लायंस कर रहे हो, आप कंप्लाई कर रहे हो. पर ये है यहाँ पे और इसमें ये भी डिफरेंस है कि ओबीडियंस में वो रिक्वेस्ट कोई हायर अथॉरिटी ने किया है जिसको आप मना नहीं कर सकते हो, बट कंप्लायंस में हायर अथॉरिटी रिक्वेस्ट नहीं करती है जिसे आप मना कर भी सकते हो. सो दैट इज़ कॉम्प्लायंस एंड दैट इज़ ओबीडियंस. कंफर्मिटी इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. ये मीन्स अगर आप ग्रुप में हैं तो अगर ग्रुप किसी भी चीज़ को मान रही है तो आप उसको मना नहीं कर सकते. दैट इज़ कंफर्मिटी. कंफर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द ग्रुप नॉर्म. अगर आप किसी ग्रुप में हैं और उसका पार्ट है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आप उसको ना नहीं कर सकते, आपको भी उसको हाँ कहना पड़ेगा. सो ये जो टर्म्स हैं इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है पर्सन पे. जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हमें कंफर्मिटी करनी पड़ती है. दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू योर चैप्टर 7. ग्रुप्स टॉपिक से ये चैप्टर है कंफर्मिटी कॉम्प्लायंस. मैं थोड़ा सा इसका डिस्कशन अभी कर दे रही हूँ ताकि जब हम लोग ग्रुप चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कंफर्मिटी होती है, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लायंस होता है. तो आई जस्ट वांट यू टू बी known from these topics. Next, I hope just children I have cleared you each and everything.
I just suggest you to do the revisions maximum and make your notes, and please students take the study very seriously and study, uh, solve the question paper of the board examination. Pick up the question paper and solve it. That will be very beneficial to you. And go through the questions. See what are the questions are asked and come along with the question with the teacher. Teachers के पास आप questions लेके आइए and try to solve that question by yourself as well as ask from the teachers also. So this is the best strategy for doing anything. And secondly, time management. Time अपना manage करिए. You have to study. You have to give each and every subject the equal time daily. So I hope children, my guidance, my suggestion will work for you. Thank you for understanding the topic which we have discussed, impression formation and attribution. Meanwhile, we have discussed about these topics, that what is conformity, what is compliance and what is obedience. So now we will meet with the next video of the chapter 7. Thank you so much.